हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के आज के सेशन में। पिछले 2 वीक से हम क्लासेस नहीं कर पाए क्योंकि कार्तिक का उत्सव चल रहा है, कई सेवाएं हैं। और लास्ट वीक हम वृंदावन में थे। तो आज से हम वापस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसे जरा देख लीजिए। भगवत गीता चैप्टर 4, श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान कह रहे हैं कि even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धिशाली व्यक्ति भी जो है वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कर्म क्या है। यह जानते हुए सॉरी जिससे कर्म को जानकर तुम सभी अशुभ वस्तु से मोक्ष को प्राप्त करोगे या मुक्त हो जाओगे। ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। Action in Krishna consciousness has to be executed in accord with the examples of previous bona fide devotees. This is recommended in the 15th verse. Why such action should not be independent will be explained in the text to follow. To act in Krishna consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in line of discipline succession, as explained in the beginning of this chapter. The system of Krishna consciousness was first narrated to Sun God, then Manu, then Ikshvaku, and like that. Therefore, one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of discipline succession. Otherwise, even the most intelligent men will be bewildered regarding the standard actions of Krishna consciousness. For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly. Because of the direct instruction of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered. It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid down by Lord Himself. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. No one can manufacture a religious principle by imperfect speculation. One must follow in the footsteps of great authorities like Brahma, Shiva, Narada, Manu, the Kumaras, the Kapila, Prahlad, Bhishma, Shukadev Goswami, Yamraj, Janak, and Bali Maharaj. By mental speculation, one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of causeless mercy to his devotees, the Lord explains directly to Arjun what action is and what inaction is. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from entanglement of material existence. Okay, तो तात्पर्य बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है। एकदम सार रूप में प्रभुपाद जी ने क्या क्या कह दिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म कभी कभी इतना गहन होता है, इतना गहरा होता है कि बुद्धिशाली व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। यद्यपि मान लीजिए अकर्म करना है तो कभी कभी क्या अकर्म है यही नहीं पता, कर्म करना है तो क्या कर्म है यही नहीं पता। तो भगवान अभी इसको क्लेरिफाई करेंगे आने वाले श्लोकों में कि जिससे अशुभ वस्तु से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अशुभ क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं अशुभ क्या है। तो अशुभ के विषय में तो सभी आचार्यों का एक ही मत है, कोई भी संप्रदाय से हो सभी आचार्यों का एक ही मत है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कि बार बार जीवात्मा जो है वो इस संसार में आ रहा है, एक शरीर को प्राप्त कर रहा है, फिर कुछ कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार जब शरीर को त्याग देता है तो वापस पूर्व कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और ये चक्र जो है ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। योनियां बदलती है, कभी मनुष्य बनता है,
कभी कीटाणु बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी जलचर बनता है। इस प्रकार से योनियां बदल रही है, लेकिन चक्र जो है वही चलते आ रहा है। और इस पे सभी आचार्यों का एक ही मत है कि यही सबसे बड़ा अशुभ अवस्था है, कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करने से व्यक्ति अशुभ अवस्था से मुक्त हो जाता है। अर्थात क्या? अभी उसको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इसके पूर्व में ही, इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने क्या कह दिया था कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से गुरु परंपरा चलती आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से ज्ञान को, हम कह सकते हैं ऐसे, इन्वेंट नहीं कर सकता है। ज्ञान इन्वेंट नहीं हो सकता। हाँ, आप डिस्कवर कर सकते हो कुछ, लेकिन इन्वेंट नहीं कर सकते। ज्ञान हमेशा चलते आ रहा है। जैसे हम आध्यात्मिकता को ही न ले, हम भौतिक जगत को लेते हैं। मान लीजिए मैं साइंस पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मेरे गुरु मुझे सिखाते हैं कि देखो ये प्लैनेट है, इसका नाम ये है, इस प्लैनेट का नाम ये है, हमारा स्पेसशिप जो है वो यहाँ यहाँ तक गया है, अभी इतना ब्रह्मांड हमने डिस्कवर किया है, इतना और भी बाकी है करना। तो ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये ज्ञान आपको अंदर से नहीं आ रहा। अगर भौतिक ज्ञान ही अंदर से नहीं आता, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भौतिक जगत के ही परे है, वो अंदर से कैसे स्फुरित होगा? उसके लिए भी गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता है। इसको डिडक्टिव नॉलेज कहते हैं, या डिसेंडिंग नॉलेज कहते हैं। एसेंडिंग नॉलेज मतलब क्या? हम अपने एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हैं, उसको एसेंडिंग नॉलेज कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से गलतियां हो सकती है। क्यों गलतियां हो सकती है? उसके चार प्रमुख कारण हैं। गलतियां क्यों हो सकती है? क्योंकि जीवात्मा के चार दोष होते हैं। किसी भी जीवात्मा के चार दोष होते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्स और करणापाटव, ये चार दोष होते हैं, ठीक है। तो हम जीवात्मा कभी भी भ्रमित हो जाते हैं, कोई भी हमें फंसा सकता है। ये हमारा, मतलब ऐसे हम कह नहीं सकते कि पूरे जीवन में किसी ने हमको चीट किया नहीं, या किसी ने ना भी किया हो तो हम चीट न हुए हो। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, तो रास्ते में सूर्य की किरणों के कारण जल दिखाई देता है, लेकिन जल होता नहीं, उसको मृगजल कहा जाता है। तो ये भ्रम है, ये भ्रम है। क्योंकि जीवात्मा भ्रम में गिर जाता है, ये एक दोष है। इसलिए वह स्वयं से ज्ञान को प्राप्त, स्वयं से अंदर से स्फुरित जो ज्ञान है उस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सही है गलत है, ठीक है। फिर बाद में आगे आता है जीवात्मा को, जीवात्मा में फंसाने की वृत्ति होती है, चीटिंग टेंडेंसी। हम भी किसी को फंसाते हैं, है सभी जीवात्माओं में होती है। इस भौतिक जगत में जो भी है सभी में है, साधुओं को छोड़ के, जो शुद्ध संत है उनको छोड़ के। तो ये फंसाने की वृत्ति हम में होती है, ठीक है। दूसरा, सॉरी, तीसरा, हमारी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है। तो क्योंकि इंद्रिय हमारी अपूर्ण होती है, जैसे इस दीवार के पीछे वहां क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, ये अपूर्ण होने के कारण। या मान लीजिए दीवार भी आप हटा दो तो भी व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है? एक व्यक्ति चलते 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 जा रहा है, और कुछ दूरी बाद वो दिखाई नहीं देता, तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति ही नहीं रहा? नहीं, व्यक्ति है लेकिन हमारी आंखों को नहीं दिखाई दे रहा। तो इंद्रियां अपूर्ण है। वृद्धावस्था में आने के बाद कानों को ठीक से सुनाई नहीं देता, होता है कि नहीं? तो ये सभी अपूर्ण इंद्रियों के लक्षण है। सो जीवात्माओं में ऐसे दोष प्राप्त होने के कारण ज्ञान कभी भी एसेंडिंग वे में नहीं ले सकते। ज्ञान को हमेशा डिसेंडिंग वे में ही आना चाहिए। मतलब बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बच्चा खुद के एक्सपेरिमेंट से नहीं सीख सकता, उसको टीचर ने बताना चाहिए कि ऐसा होना होता है।
और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी है तो भी उसको बताना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री के लैब में आप जाते हो, वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हो, वो तो फील्ड एक्सपेरिमेंट का है, फिर भी वहां पे प्रोसीजर दिया गया है और उसके अनुसार ही करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत के सीमा रेखा में भी जब हम डिसेंडिंग वे ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब गुरु ने जो बताया उसको स्वीकार करते हैं, और फिर जैसे जैसे हम कार्यशील होते हैं तो हमें पता लगता है कि ये ज्ञान सही है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी यही कॉमन सेंस जो है वो अप्लाई होता है। जबकि आध्यात्मिक जगत में तो होना भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक विषय जो है वो पूरे भौतिक जगत के ही परे है। तो भौतिक जगत को ही समझने के लिए हमें जब गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक जगत को भी समझने के लिए आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान स्फुरित अंदर से आए और फिर बाद में वो भगवत प्राप्ति करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके उसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है गुरु शिष्य परंपरा की। और दूसरे ही उसी तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद 12 महाजनों के नाम भी बताते हैं। कौन कौन है 12 महाजन? देखिए यहाँ पे नाम बताए गए हैं। 12 महाजन है ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी, फिर नारद मुनि, स्वयंभू मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक महाराज और बलि महाराज। ये 12 महाजन श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन आता है। तो अगर आपको गुरु शिष्य परंपरा कहीं पे दिख भी नहीं रही कि हाँ यहाँ पे कहीं गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, तो भी इन 12 महाजनों को फॉलो करने से आप अल्टीमेटली गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते ही हो, क्योंकि ये 12 महाजन गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा पूर्व आचार्यों के आज्ञा के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार हमारे आने वाले कर्मों को निर्धारित करना चाहिए। आप अगर कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, तो हिस्ट्री में जाइए। ऐसा सिचुएशन कभी किसी महान व्यक्ति के जीवन में आया है क्या? आप अगर वो देखोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, राइट? तो जो कॉमन सेंस हम मटेरियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, वही कॉमन सेंस हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। अभी आगे 17वें श्लोक में भगवान बता रहे, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अभी भगवान बता रहे हैं कि कर्म को जानो, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, इन तीनों को जानो। क्योंकि कर्म की जो जाल है, जाली जो है, उसको समझना बहुत ही कठिन है। अभी तक तो हम यही समझते आ रहे हैं कि एक तो कर्म है और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन भगवत गीता में आपको पता चलता है कि तीन प्रकार के कर्म है। एक कर्म, एक अकर्म, सॉरी एक विकर्म और एक अकर्म। ये तीन प्रकार के कर्म है। अन्यथा सामान्य जगत में, आप भौतिक जगत में लोगों से पूछो कि भगवत गीता का सार क्या है, तो लोग यही बताएंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये श्लोक बताएंगे वो। लेकिन कैसा कर्म करना, ये उनको नहीं पता। तो कैसा कर्म करना चाहिए, उसके लिए पहले कर्म कितने प्रकार के हैं ये जानना जरूरी है। तो कर्म तीन प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, इफ वन इज सीरियस अबाउट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, वन हैज टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन एक्शन, inaction and unauthorized actions. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction, and perverted actions, because it is very difficult subject matter. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. One who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of Lord, and that consequently one has to act in Krishna consciousness. The entire Bhagavad Gita is directed towards this conclusion.
Any other conclusion against this consciousness and its attendant actions are vikarmas or prohibited actions. To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. Otherwise, even the most intelligent person will be filtered. अभी यहाँ पे देखो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि कर्म क्या है ये पता लगा, सॉरी, कर्म कैसे करने चाहिए ये जानने के लिए हमको तीन प्रकार के कर्म है ये पहले जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन तीन प्रकार के कर्म जानने के बाद उसमें से कौन सा कर्म चूज करना है ये भी समझने के लिए एक और ज्ञान की आवश्यकता है। वो है अंश और अंशी का ज्ञान। तो अंशी का अर्थ है जो व्यक्ति पूर्ण है, और अंश का अर्थ है कि उस पूर्ण व्यक्ति में से जो जीवात्मा निकला है, मतलब भगवान, और भगवान हुए अंशी जिनसे अंश निकलते हैं, और जीवात्मा हुआ अंश जो भगवान से निकल रहा है ना, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। ये तो जब तक आपको यही पता नहीं होगा तो कर्म अकर्म विकर्म में से कौन सा चूज करना है ये कैसे पता लगेगा। इसलिए उससे भी पहले ये पता लगना जरूरी है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हम जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है। जब संबंध ज्ञान होगा तब उसके अनुसार कार्य होगा ना। अभी उसको प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ। हम कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरा पोस्ट एम्प्लॉय के फॉर्म में है, ये मेरा रूप है। तो ये मेरा ज्ञान हो गया, मेरे विषय में ज्ञान हो गया। कंपनी क्या करती है ये कंपनी के विषय में ज्ञान हो गया। और एज एन एम्प्लॉय मेरा कंपनी में क्या रोल है ये हो गया संबंध ज्ञान, द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, ये हो गया संबंध ज्ञान। अब जब तक संबंध ही नहीं पता है तो व्यक्ति जॉब करेगा कौन से प्रोफेशन में। संबंध पता होना चाहिए ना। सिर्फ कंपनी ज्वाइन कर लेने से कोई काम नहीं करता, आपको संबंध पता होना चाहिए कि मैं इस पोस्ट पे हूं। पोस्ट से संबंध ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरा ये कर्तव्य है क्योंकि कंपनी में मेरा ये पोस्ट है। फिर क्या करना है तो कर्म बाद में है। अभी आपको ये लेवल समझ में आया। ठीक है, बाहर के लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये गीता का सार है, ये 100% है। एक्चुअली यही गीता का सार है। लेकिन किसके लिए कर्म करना ये अभी प्रश्न उठता है। तो जब ये इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि किसके लिए कर्म कर रहे हैं, फिर उस सेंस में कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस सेंस में कि भगवान के लिए कर्म करने से जब हम फल से अनासक्त हो जाते हैं, वो एक्चुअली तब आप समझोगे कर्मण्यवाधिकारस्ते का अर्थ क्या है। सार तो वही है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस फॉर्म में वो कहा गया है। ये क्लियर हो रहा है आप सभी को। तो संबंध ज्ञान के बिना अभिधेय में, मतलब एक्शंस में, आप उसको लेके नहीं आ सकते, उसको मटेरियलाइज नहीं कर सकते। इसलिए संबंध ज्ञान, द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, ये जरूरी है कि जीव कौन है, भगवान कौन है, जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है। जब ये पता लगेगा फिर हम वो कार्य कर सकते हैं। तो अभी अर्जुन के केस में देखिए, यहाँ पे अर्जुन के एग्जाम्पल से हम अपने अपने एग्जाम्पल में उतार सकते हैं, उसको उस तरीके से समझना। अर्जुन के केस में अर्जुन एक जीवात्मा है, कृष्ण भगवान है, परमात्मा है। जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध है दासत्व का, ठीक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सभी जीव प्राय हमेशा भगवान के दास ही होते हैं, उनके अंश होने के नाते। अब क्योंकि भौतिक जगत में आए हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना जरूरी है। तो अगर कुछ ना कुछ करना ही है तो वर्णाश्रम का पालन क्यों ना करें। वर्णाश्रम की चर्चा हमने ऑलरेडी पूर्व सेशंस में की है, किस प्रकार से जीव के चेतना के अनुसार वर्णाश्रम बने हुए हैं, इसकी चर्चा ऑलरेडी हमने की है। तो
क्योंकि अर्जुन की चेतना क्षत्रिय के स्तर पे है, तो क्षत्रिय होने के बाद वो किस प्रकार से भगवान को सेटिस्फाई करता है, ये उसका कर्म है। आप समझे कि कर्म क्या है एग्जैक्टली exactly? ये उसका कर्म है। अगर वो भगवान को सेटिस्फाई नहीं करते हुए कर्म करता है तो वो सामान्य कर्म में आ जाएगा, लेकिन भगवान को सेटिस्फाई करते हुए कर्म करता है तो वो भक्तिमय कर्म में आ जाता है। और ये है एक्चुअली गीता का सार। इसके विपरीत जो भी कोई कंक्लूजन देता है कि कर्म का अर्थ ये है, तो वो इसके ऑपोजिट कंक्लूजन जो है वो गलत है। क्योंकि कर्म तो तब कर सकता है जब संबंध हो, संबंध ही ना हो तो कर्म किसके लिए करेगा। पति और पत्नी के बीच में संबंध है तभी उनके बीच में आदान प्रदान है। बच्चे और माँ बाप के बीच में संबंध है तभी आदान प्रदान है। गुरु शिष्य में संबंध है इसलिए आदान प्रदान है। अगर आप संबंध सभी काट दोगे तो कर्म कहाँ रह जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर्म करना चाहिए, उसके लिए संबंध होना चाहिए। संबंध ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान ये है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान अंशी है, और अंश का हमेशा अंदर से उसका स्वभाव होता है अंशी के वहां भागना। क्योंकि भगवान आनंदमय है, इसलिए हम भी इस जगत में आनंद को ही ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं? हम जॉब क्यों करते हैं? ताकि पैसा कमाए, अच्छा घर बने, अच्छे बीवी हो, बच्चे हो, गाड़ी हो। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो इच्छा है आनंद की, कि मैं संतुष्ट होना चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। इच्छा इसकी है। व्यक्ति अच्छा भोजन करता है अंदर आनंद के लिए। तो आनंद की जो लालसा है वो इसलिए है क्योंकि हम आनंदमय के अंश हैं। भगवान आनंदमय है और हम आनंदमय के अंश हैं। इसलिए हम हमेशा आनंद के पीछे भागना चाहते हैं, सुख कहाँ है वो ढूंढते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कैसे कर्म करने से हमें परमानेंट हमेशा वाला सुख प्राप्त होगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। 4.18 में कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग श्लोक है। वन हु सीज इन एक्शन इन एक्शन। अभी दो शब्दों को समझिए। इन एक्शन, इन एक्शन, and action in action is intelligent among men, and he is in the transcendental position although engaged in all sorts of activities. अभी देखो ये तो श्लोक थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म को देखता है, अच्छे से शब्दों को सुनिए, जो अकर्म में कर्म को देखता है और जो कर्म में अकर्म को देखता है, ये व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी ऑलरेडी लिबरेटेड है। वो पूरी तरह से मोक्ष मुक्त है। अभी इसका अर्थ क्या है कि अकर्म में कर्म को देखना और कर्म में अकर्म को देखना। अभी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको समझना होगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ठीक है, तो कर्म है जब हम शास्त्रों के आज्ञा का पालन करें, ये कर्म है। ठीक है, जो सही कार्य है उसको कहते हैं कर्म। ये करना ही चाहिए व्यक्ति को, जिसको हम एक शब्द में कहें तो वर्णाश्रम धर्म, ये कर्म है। विकर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, इसको कहते हैं विकर्म। जो पाप कृत्य है, जिसको शास्त्र नकारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हो गया विकर्म। सबसे श्रेष्ठ एक्चुअली अकर्म है। अकर्म का क्या अर्थ है? जब हम कर्म और विकर्म के परे उठ जाते हैं, जो सही है पारमार्थिक दृष्टिकोण से। मतलब भगवान अगर कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए तो वो करना चाहिए, उसको कहते हैं अकर्म। जिसको मैंने कहा कि अर्जुन का युद्ध करना भगवान के लिए जो भक्तिमय कर्म है उसको कहते हैं अकर्म। क्यों?
अभी देखिए, किसी को मारना ये शास्त्र के विरुद्ध है, ठीक है, शास्त्र अहिंसा की चर्चा करते हैं, तो ये विकर्म आ गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम अधर्मियों को मारो, तो ये क्या हो गया, ये अकर्म है, क्योंकि भगवान के आदेश से हो रहा है। तो मारना गलत बात है, विकर्म है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि सामने कौन है वो मारो, तो ये अकर्म है। अभी इसको आपके कॉमन टर्म्स में मैं समझाऊं तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर शरीर के साथ चीर फाड़ करते हैं कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते। अभी ऐसे ही कोई व्यक्ति शरीर को तोड़े या उसको काटे, तो क्या उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति अगर डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और उस ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता है कि उस शरीर को काटे, थोड़ा काटे, कहीं से ये करे, फिर कुछ इसमें उपचार करे, तो वो क्या हो गया, क्या वो दंडनीय कार्य है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ज्ञान युक्त है। आप समझिए, इसे ज्ञान युक्त, उसको कहते हैं अकर्म। तो जो व्यक्ति अकर्म करता है वो कर्म और विकर्म के परे उठ चुका है। और इसकी ही चर्चा, एग्जैक्टली इस अवस्था की ही चर्चा दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मा। कि वेद जो है वो प्राय तीन गुणों की चर्चा करते हैं, सत्व रजस तमस, और लोग इसका ही पालन करते हैं, मतलब कर्म करते हैं लोग वेद के अनुसार, जो अच्छा है, बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है, करना ही चाहिए। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ के कार्य करो। तो वो जो लेवल है कॉन्शियसनेस का, वैसा कार्य करने से ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। व्यक्ति 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 को तीसरा फल प्राप्त होता है। तीसरा फल क्या है, मोक्ष। पाप और पुण्य ये दोनों भी भौतिक जगत में भागते हैं, इसलिए हमें पुण्य भी नहीं करने, पाप तो हमें करने ही नहीं है। और सामान्य लोगों को प्रेरित करने के लिए पुण्य कर्म करना ये कहना चाहिए हमें, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, भगवान कह रहे हैं अकर्म करो। अकर्म से आप पाप और पुण्य दोनों से ही ऊपर उठ जाओगे। क्यों, पाप और पुण्य में क्या फर्क है पता है आपको, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। सिर्फ अंतर इतना है कि पुण्य में सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा लगता है, इतना ही अंतर है। जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, अभी एक होता है कि आप जितना चाहिए उतना पैसा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, ओके। और उसके बाद फिर बाद में आपको ये आ जाता है, बिल आ जाता है कि इतना हुआ है, ठीक है। और एक होता है कि एक लिमिटेशन होती है, उसके अंदर आपको खर्च करना है। तो डेबिट और क्रेडिट में जितना अंतर है उतना ही अंतर है, अदरवाइज दोनों में भी खर्च करना है और दोनों में भी लिमिटेशंस है, बाद में भरपाई है। एक में पहले भरपाई है और बाद में एंजॉयमेंट है, और एक में पहले एंजॉयमेंट है बाद में भरपाई है। अब समझ में आ रहा है आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, फर्स्ट यू एंजॉय देन यू पे, दैट इज क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट यू पे एंड देन यू एंजॉय, दैट इज डेबिट कार्ड। पाप और पुण्य वैसा ही है, पाप में क्या है, पहले आप एंजॉय कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, बाद में प्रकृति आपको दंड देती है, आप उसका भरपाई करो। पुण्य में क्या है, आप ऑलरेडी सैक्रिफाइस, भरपाई कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, इंद्रियों पर निग्रह कर रहे हो, सब कर रहे हो, और बाद में उसका एंजॉयमेंट है, उच्च गति को प्राप्त करना, स्वर्ग में जाना, ये उसका एंजॉयमेंट है। उसके क्या कह सकते हैं हम, ऑर्डर के अंदर अंतर है कि पहले ऑस्टेरिटी और फिर रिजल्ट, ये डेबिट कार्ड है, और पहले रिजल्ट और बाद में ऑस्टेरिटी, ये क्रेडिट कार्ड है। इतना ही अंतर है, बाकी दोनों में भी ऑस्टेरिटी है, दोनों में भी रिजल्ट है। और क्योंकि दोनों में है, इसलिए पारमार्थिक दृष्टिकोण से, एब्सोल्यूट लेवल से दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी आपको बंधन में बांध रहे हैं।
तो पाप और पुण्य में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। पुण्य सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ लोग समाज में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट है, उस चीज को हम पुण्य कहते हैं कि हाँ हम उसको उस नियम का पालन करें, दैट इज पुण्य। और पाप मतलब उस नियम को तोड़ देना। हम एग्री नहीं करते, इतना ही डिफरेंस है। तो हमको ये दोनों भी नहीं करना, हमको एक्चुअली इससे ऊपर उठ के कार्य करना है। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म में इसका ऑर्डर क्या है? सबसे श्रेष्ठ है अकर्म, जो कार्य मोक्ष के लिए किए जा रहे हो। फिर आता है कर्म, जो कार्य समाज के हित के लिए किए जा रहे हैं और समाज के स्तर पे ही है। फिर आते हैं विकर्म, जो कार्य समाज के अहित में किए जाते हैं, ये होते हैं विकर्म। तो हमें विकर्म से कर्म के स्तर पे आना है, कर्म के स्तर से फिर अकर्म के स्तर पे आना है। अभी 4.19 में बता रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तत् आहुः पंडितम बुधाः। क्या कह रहे हैं? One is understood to be in full knowledge whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. ओके, तो अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ज्ञानी है हम कैसे पहचाने। हर एक व्यक्ति के एक लक्षण होते हैं ना। जैसे आप जल के पास जाओ तो जल का लक्षण है बहना, इसलिए आप उसको कहते हो ये जल है। अग्नि का लक्षण है गर्मी प्रदान करना या प्रकाश प्रदान करना, तो वो अग्नि है। पृथ्वी का लक्षण है स्थिरता, तो आप समझ सकते हो कि ये पृथ्वी है। तो हर एक वस्तु का अपना अपना एक गुणधर्म होता है, लक्षण होता है। तो मूर्ख का लक्षण क्या है? जैसे ही व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति को आपको पहचानना है तो आपको पता है क्या करना चाहिए? एक विषय दे दो उसको, उस विषय पे वो क्या कहता है सुनो सिर्फ, उसके कहने मात्र से आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञानी है या मूर्ख है। तो किसी के आचरण से हम समझ सकते हैं कि यह ज्ञानी है या मूर्ख है। तो ज्ञानी का लक्षण क्या है? ज्ञानी का लक्षण यह है कि वो कर्म तो करता है, लेकिन कर्म इसलिए नहीं करता कि उसको कुछ चाहिए उसमें से लाभ। वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसको कर्म करना चाहिए। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो वो अन्यों को क्या प्रेरित करेगा कि हाँ ऐसे ही आलसी बने रहो। तो ज्ञान का लक्षण है कर्म और कर्म का लक्ष्य है ज्ञान। इन दोनों को आप समझिए, दोनों एक दूसरे के लक्ष्य हैं, ठीक है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान को वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, मतलब वो कर्म करता है। अभी कर्म करने के बाद कैसे कर्म आगे करने चाहिए इसका ज्ञान उसको प्राप्त होता है। जब तक ये बेसिक कर्म नहीं करेगा तब तक उसके अंदर के गलतियां उसको समझ में नहीं आएंगी, तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि आगे क्या करना है। इसको आप समझिए ठीक से, और एक बार मैं समझाता हूँ कि जैसे हम कोई भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, ये हमने ज्ञान प्राप्त किया। अभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो कर्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखा जाता है कि जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो जो थियरी सीखी है वो जरूरी नहीं कि सेम अप्लाई हो। उसके अंदर आपको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन लेके आने पड़ते हैं, है ना। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है? वो क्या है? वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। आपने कर्म में अप्लाई किया, अब आप देख रहे हो कि ये हर जगह नहीं चलता, कुछ कुछ सिचुएशन में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। फिर आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ज्ञान कर्म के पास लेके जाता है और कर्म वापस ज्ञान के पास लेके जाता है।
और वो ज्ञान वापस परफेक्ट कर्म, और फिर वो परफेक्ट कर्म फिर वापस परफेक्ट नॉलेज। तो ये जो लैडर जो है ना, ये चलता रहता है हमेशा। और ये लैडर कहाँ आके रुकता है, किसी को पता है? ये लैडर आके कहाँ रुकता है? ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत 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 जन्मों तक ज्ञानी व्यक्ति जो है, वो उसके बाद समझता है वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। इस पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। उसको भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा जो है, वो सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। अभी इस दृष्टिकोण से देखिए कि एक भक्त एक्चुअली कितना रेयर है। तो भक्ति करना कोई भावुकता का कार्य नहीं है, एक्चुअली ये साइंटिफिक नॉलेज है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, ये थोड़ा विज्ञान में उदाहरण जा रहा है जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है? मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे को लैपटॉप के माध्यम से देख रहे हैं। ये सारा संभव क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे मैं लैपटॉप पे निर्भर हूं आपको देखने के लिए, आप भी आपके मोबाइल या लैपटॉप पे निर्भर है मुझे देखने के लिए। लैपटॉप किसी वस्तु के ऊपर रखा गया, मतलब लैपटॉप भी किसी वस्तु पे निर्भर है, इट इज डिपेंडेंट। वो वस्तु भी किसी और वस्तु पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। और अल्टीमेटली हम सभी पृथ्वी पे निर्भर है। इसको आप इस प्रकार समझिए, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड में निर्भर है, या सूर्य पे निर्भर करती है, सूर्य ब्रह्मांड पे निर्भर है। ये साइकिल देखिए किस प्रकार से पीछे जाता है। तो मैक्रो लेवल पर भी एकदम ह्यूज लेवल पर भी ये भगवान के पास जाएगा कि ब्रह्मांड किस पे निर्भर है, ब्रह्मांड जो है वो भगवान पे निर्भर है। पर भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है? तो मैक्रो लेवल पर हम इस प्रकार से जा रहे हैं, अभी हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं, ठीक है? अभी लैपटॉप जो है वो सिर्फ पृथ्वी पे निर्भर नहीं है, या हम सभी पृथ्वी पे निर्भर नहीं है। ये लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूं, या मेरा शरीर भी जो है, जो भी कोई वस्तु है, ये सभी परमाणु से बने हैं, ठीक है, एटम से बने हैं, या फिर उसके अलग अलग भागों से बने हैं, ठीक है? जैसे लैपटॉप में स्क्रीन है, उसका टाइप फेस है, कीबोर्ड कीपैड जो भी कहते हैं वो है, ये दोनों मिलकर लैपटॉप बनता है, ठीक है? अभी वो किससे बने? कीपैड बना है की से, है ना, कीज से बना हुआ है। कीज किससे बने हुए हैं? जो जिस धातु से वो बनता है, मेटल का हो या जो भी कहो, उससे वो उसके ऊपर निर्भर है, इसलिए की बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप पीछे पीछे जितना नीचे नीचे और जाओगे, आपको पता चलेगा कि हर एक वस्तु परमाणु के कारण निर्भर है, ठीक है? एटम्स हैं तभी सारे वस्तु फॉर्म हो रहे हैं। एटम किस पे निर्भर है? एटम उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कारण निर्भर है। ये किस पे निर्भर है? ये भी निर्भर है भगवान के ऊपर। तो माइक्रो माइक्रो लेवल पर भी है ना, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, कि भगवान कैसे है, वो ब्रह्मांड में भी मैक्रो लेवल पे है, और उस ब्रह्मांड के अंदर जितने परमाणु हैं, असंख्य कोटि परमाणु हैं, और उस परमाणु को सस्टेन भी भगवान कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे। तो आप दोनों स्केल्स में जाइए, आप ऊपर जाइए, आप नीचे जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, सर्वत्र भगवान है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, देखो ये नास्तिकों को एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीका है। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि कोई नास्तिक अगर ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये जगत अपने आप क्रियाशील है, तो आपको समझाना आना चाहिए कि दुनिया जो है वो किसी ना किसी वस्तु पे निर्भर है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि, क्योंकि देखो दुनिया भागों से बनी है ना, हर एक भाग है, ये पूरी पृथ्वी जो है 5 तत्वों से बनी है, जल, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, 5 तत्वों से बनी है, ठीक है?
अभी क्योंकि पूरी पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड जो है अलग अलग तत्वों से बना है, अलग अलग भागों से बना है, तो जो भी वस्तु भाग से बनती है वो एक दूसरे पे निर्भर होती है। एग्रीड? मेरा ये शरीर अलग अलग भाग से बना हुआ है, हाथ है, हाथ किन भागों से बना है, उंगलियों से बना है। ठीक है, जैसे ये उंगली है, ये भाग है, ये उंगलियां जुड़ती है मेरे मुट्ठी में, तो मुट्ठी भाग है, मुट्ठी जुड़ता है हाथ को तो हाथ भाग है, हाथ जुड़ता है धड़ से तो धड़ भाग है, ये सब भाग है। ऐसे ही ब्रह्मांड भी अलग 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 भागों से बना है, पार्ट्स में बना हुआ है। तो जो भी वस्तु पार्ट्स में बनती है वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है किसी ना किसी पे। अब क्योंकि ब्रह्मांड इटसेल्फ पार्ट्स में बना हुआ है, तो ब्रह्मांड इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? आप अगर ब्रह्मांड के अंदर से जल तत्व हटा दो, अग्नि तत्व हटा दो, तो ब्रह्मांड एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा। एग्जिस्ट करने के लिए पांच तत्व चाहिए, मन बुद्धि अहंकार चाहिए, ये भाग है उसके। तो कोई भी वस्तु जो भाग से बनी है वो हमेशा निर्भर रहेगी किसी ना किसी पे। और अगर आप ऐसे पीछे 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 जाते रहिए कि नहीं ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, तो क्योंकि भौतिक जगत में सभी कुछ एक दूसरे पे निर्भर है, तो कब तक आप चक्र में घूमोगे बताओ? कोई ना चीज किसी ना किसी चीज से बनी हुई है। तो बुद्धि ये कहती है कि कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो हम इनफाइनाइट साइकिल में फंसे रहेंगे। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आप इनफाइनाइट साइकिल में फंसे रहेंगे नहीं तो। ये सभी चीजें काल से आती है, तो काल कहां से आता है? काल भी भौतिक जगत का भाग है ना, और काल भी भाग में विभाजित होता है, तो काल कहां से आया? तो ऐसे आप जितना पीछे जाओगे तो एक वस्तु पे आके रुक जाती है सारी चीजें, एक वस्तु पे आके। जिसको वैज्ञानिक बिग बैंग कहते होंगे उसको हम भगवान कहते हैं। भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान का कोई कारण नहीं है, लेकिन भगवान से जो भी उत्पन्न हुआ है उसका कारण भगवान है। अगर भगवान का भी कोई कारण बन जाए, मानो अगर कोई नास्तिक ये तर्क दे कि भगवान भी तो कहीं से आए होंगे, इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो तो उस प्रश्न का उत्तर ही ये है कि इफ समवन क्रिएट्स गॉड, अगर कोई भगवान को क्रिएट करता है तो वो भगवान है, ये भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान बाय डेफिनेशन मीन्स कि वो सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। वो क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। इसको आप समझिए, बाय डेफिनेशन भगवान का मतलब ही वो है। इसलिए श्रीमद् भागवत ही प्रारंभ होता है जन्मादि यस्य यतो अन्वयादि तरतस्, इस प्रकार से कि सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई, स्थिति जहां से प्रारंभ हुई, प्रलय जिससे होता है, तो ये सभी भगवान के डेफिनेशन। तो बहुत साइंटिफिक नॉलेज है। और आप जितना ज्यादा इस प्रकृति को ऑब्जर्व करोगे पूरे जगत में, चाहे आप बड़े से बड़ा नास्तिक साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन आपको ये पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं से तो शुरुआत हुई है। और वो पॉइंट जो है वो है नारायण, वो पॉइंट है कृष्णा, जिसको हम कहते हैं सर्व कारण कारणम। वो सभी कारणों के कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। तो जब उस पॉइंट पे हम एड्रेस करते हैं, उसको भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो जो कहता है वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। उस पॉइंट से फिर भक्ति प्रारंभ होती है, क्योंकि अब आपको पता चला है कि ये भगवान है और मैं उनका अंश हूं, मुझे भक्ति करनी है। ये समझ में आया सभी को? सो भक्ति जो है ये कोई भावुकता का विषय वस्तु नहीं है, ये ज्ञान की परिकाष्ठा है। जब ज्ञान एकदम सर्वोत्तम सीमा में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा भगवान ये नहीं कहते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत 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 जन्मों के बाद उस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है।
वासुदेवम सर्वमति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो भक्त को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। आप जो भक्ति कर रहे हो, ये कई जन्मों से अलग अलग कर्म करते 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 इस पॉइंट पे पहुंचे हो। हर जन्म में आप असंतुष्ट रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए अब धीरे धीरे आप इस पॉइंट पे आए हो कि क्या करना चाहिए, और उसी की चर्चा हो रही है कि ये कर्म है, ये करना चाहिए, इसकी चर्चा हो रही है। तो क्या करना चाहिए? हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म क्या है? वो कर्म और विकर्म दोनों के परे है। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।